नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं एसके लाइव। स्वागत है आप सभी का न्यूज बुलेटिन में। आइए एक नजर डालते हैं आज के न्यूज हेडलाइंस पे। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से जूनियर डॉक्टरों ने किया इनकार, आंदोलन जारी रखने की घोषणा की। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखने के डॉक्टरों के फैसले का शुभेंदु अधिकारी ने की सराहना, कहा मुख्यमंत्री को नहीं है शर्म। आरजीकर मामले में न्याय की मांग को लेकर भाजपा की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन, सांसद राजू बिष्टा ने सीएम ममता पर बोला हमला, कहा सीबीआई जांच होनी चाहिए ममता बनर्जी की। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आदेश के खिलाफ पश्चिम बंगाल के सैकड़ों जूनियर डॉक्टरों ने आज स्वास्थ्य भवन में किया विरोध प्रदर्शन, 5 मांगे रखी, निकाली विरोध रैली। This program is brought to you by डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को मानने से जूनियर डॉक्टरों ने किया इनकार, हड़ताल पर है अड़ी। सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता रेप मर्डर केस को लेकर हड़ताल पर गए डॉक्टरों को आज शाम 5 बजे तक काम पर लौटने का आदेश दिया। हालांकि जूनियर डॉक्टरों ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बावजूद अपना आंदोलन जारी रखने की घोषणा की है। उन्होंने स्वास्थ्य भवन में आज 1 बजे से धरना शुरू किया और स्वास्थ्य शिक्षा निर्देशक तथा स्वास्थ्य सचिव के इस्तीफे की मांग की। डॉक्टरों का कहना है कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होती वे अपना आंदोलन बंद नहीं करेंगे, आंदोलन जारी रखेंगे। Moreover, we saw that the state government and its lawyer Kapil Sibal playing a disgraceful role in trying to stop and malign our movement by any means. They claim that due to the junior doctors' strike, people are dying and patient services are being disrupted. We want to remind everyone clearly that the patient services are operational in every medical colleges in the state, with senior doctors tirelessly providing care. We also want to remind the public that there are 245 government hospitals in the state, out of which only 26 are medical colleges. The number of junior doctors is less than 7,500. West Bengal has nearly 93,000 registered doctors. Given that only a few medical colleges have junior doctors on strike, how can the entire healthcare system be said to be collapsing? This indicates that the government is spreading falsehoods and misleading the Supreme Court. We believe that this is a nefarious government effort to tarnish our movement and mislead the massive public support for it. We condemn Kapil Sibal and the Health Department, including the Health Minister, for this vile attempt to mislead the Supreme Court. We want to remind both the government and the Supreme Court that junior doctors are not the main pillar of healthcare system. They are merely trainees. If we accept the government statistics as true, and then if the healthcare system collapses due to the junior doctors' strike alone, it actually highlights the severe shortage of senior doctors, nurses, and healthcare infrastructure in government hospitals. The Health Department and Health Minister cannot escape the responsibility for this. We also राज्य के विपक्षी नेता शुभेंदु अधिकारी पार्टी के एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए उत्तर बंगाल आए। आज वह बागडोगरा हवाई अड्डे पर उतरने के बाद सड़क मार्ग से माधाभांगा के लिए रवाना हो गए। बागडोगरा हवाई अड्डे पर उन्होंने पत्रकारों से रूबरू होकर कई मुद्दों पर राज्य सरकार को आड़े हाथों लिया। इधर डॉक्टर द्वारा आरजीकर मामले पर लगातार जारी विरोध प्रदर्शन के कारण उन्होंने डॉक्टर पर काम पर नहीं जाने के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने नॉर्थ बंगाल मेडिकल कॉलेज के बारे में कहा, राज्य शिक्षा, राज्य खाद्य जेल में चला गया है, इस बार स्वास्थ्य को जेल में जाना है। ममता बनर्जी जी एक भी सच बात नहीं बोलती है, वो सबको मालूम है। কাল উত্তর দিয়েছি, বারবার উত্তর দেওয়ার কোনো দরকার নেই। উনি ঠিক করার কে? উনি ঠিক করার কে? উনি ঠিক করার কে? উনার বিরুদ্ধে এবারের লোকসভা ভোটেও 54% লোক উনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। উনি মাইনরিটি মুখ্যমন্ত্রী। এবারেও উনার পার্টি 45.67% ভোট পেয়েছে। গরিষ্ঠ সংখ্যক বাঙালি উনার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। অতএব উনি বাঙালি কি করবে সেটা ঠিক করার মালিক মমতা ব্যানার্জি নয়।
अस्पताल में प्रशिक्षु महिला डॉक्टर के साथ दरिंदगी के विरोध में भाजपा ने सिलीगुड़ी में किया विरोध प्रदर्शन। सांसद राजू बिष्ट और विपक्षी नेता अमित जैन शामिल हुए। राजू बिष्ट ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि आरजी कर अस्पताल की घटना के लिए वह भी उतनी ही दोषी है जितना अपराधी, क्योंकि उनके पास गृह मंत्रालय और पुलिस विभाग की जिम्मेदारी है। बिष्टा ने राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार बढ़ने और बंगाल को रेप कैपिटल बनाने का आरोप लगाया। उन्होंने सीबीआई से मुख्यमंत्री के भूमिका की जांच की मांग की। आज आरजीकर अस्पताल की घटना को लेकर के भारतीय जनता पार्टी मात्र सड़क पर नहीं है। ये मूवमेंट भारतीय जनता पार्टी नहीं चला रही है। ये मूवमेंट आज पश्चिम बंगाल की 10 करोड़ जनता का है और एक जिम्मेदार पार्टी होने के नाते ये हमारा फर्ज बनता है कि जनता की आवाज बने, उस परिवार की आवाज बने। वो धर्म हम निभा रहे हैं और जो घटना घटी उसके लिए जो अपराधी है सिर्फ वो मात्र जिम्मेदार नहीं है, इसके लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जिम्मेदार है। वो भी उतने ही बड़ी अपराधी है जितना बड़ा अपराध उनके माध्यम से हुआ, भगवान कभी उनको माफ नहीं कर सकता। आज पश्चिम बंगाल की मुखिया ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है, पश्चिम बंगाल की होम मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है, पश्चिम बंगाल का पुलिस ममता बनर्जी के पास है, यहाँ तक कि पश्चिम बंगाल का स्वास्थ्य विभाग हेल्थ मिनिस्ट्री ममता बनर्जी के पास है। और आपके स्वास्थ्य विभाग में ऐसी घटना और लगातार ऐसी घटना घटती है, इसके लिए सबसे बड़ी अपराध मुख्यमंत्री है। इसलिए मैं मांग करता हूं, हम सबकी ये इच्छा है कि जो सीबीआई जांच कर रही है सिर्फ अस्पताल और प्रिंसिपल तक सीमित नहीं हो, ममता बनर्जी की भी जांच होनी चाहिए। उनकी इसमें भूमिका क्या है और साफ पता चलता है टीएमसी मिले हुए। सुप्रीम कोर्ट के काम पर लौटने के आदेश के बावजूद पश्चिम बंगाल में सैकड़ों जूनियर डॉक्टरों ने आज सॉल्ट लेक के स्वास्थ्य भवन में विरोध प्रदर्शन किया। डॉक्टरों ने 5 सूत्री मांगे रखी, जिनमें स्वास्थ्य सचिव और कोलकाता पुलिस चीफ का इस्तीफा शामिल है। उनका कहना है कि जब तक इन मांगों को नहीं माना जाएगा वे हड़ताल जारी रखेंगे। डॉक्टरों ने शाम 5 बजे तक अधिकारियों को इस्तीफा देने का अल्टीमेटम दिया है। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस ने बैरिकेडिंग की। प्रदर्शनकारी डॉक्टरों का कहना है कि घटना के 30 दिन बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। একটাই কথা, আমরা কখনো বলিনি কর্মবিরতিতে ফিরবো না, আপনারা ভুল বুঝছেন। আমরা বারবার বলছি, যেমন আমাদের বলা হয়েছে আজকে 5টার মধ্যে ফিরতে, আমরা ঠিক তেমনি বলছি যে আজকে 5টার মধ্যে আমাদের যে দাবিগুলো সেই দাবি নিয়ে রাজ্য সরকার সদর্থক ভূমিকা নিন, তবে আমরা কর্মবিরতির কথা অবশ্যই ভেবে দেখব। আমরা একবারও কিন্তু বলিনি যে আমরা কর্মবিরতি চালিয়ে যাব। আমরা বারবার বলছি যে বিকেল 5টা অবধি যেমন সময় দেওয়া হয়েছে আমরাও সময় দিচ্ছি যে এই 5টার মধ্যে রাজ্য সরকার সদর্থক একটা ভূমিকা নিন, তাহলে আমরা কর্মবিরতির কথা আমরা জিবি করে ভেবে দেখব। सिलीगुड़ी में स्कूल बस दुर्घटना में कई छात्र घायल। सिलीगुड़ी संलग्न फांसी देवा मोड़ पर एक स्कूल बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। मालूम हो कि हादसे के वक्त बस में 7 छात्र मौजूद थे। कुछ लोग को वो मामूली चोटें आई है और मामूली रूप से घायल हुए हैं। घायल छात्रों को बचाया गया और उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया। हालांकि इस घटना में किसी के हाथाहाथ होने की कोई खबर नहीं है। पुलिस सूत्रों के अनुसार किसी वजह से बस का स्टीयरिंग लॉक हो गया था और इस वजह से बस नियंत्रण खो बैठी और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। खोड़ीबाड़ी ग्रामीण अस्पताल के आपातकालीन विभाग में ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर को धमकी देने का आरोप, एक गिरफ्तार। बीते रात एक घायल युवक इलाज के बाद अस्पताल से निकला, लेकिन उसकी तबीयत बिगड़ने पर वह दोबारा 15 दोस्तों के साथ अस्पताल आया और डॉक्टर को धमकाया, चेतावनी दी। युवक पुलिस से बचकर भाग गया। डॉक्टर की शिकायत पर पुलिस ने बाप्पा देवनाथ नामक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी को आज सिलीगुड़ी सब डिविजनल कोर्ट में पेश किया गया। खोड़ीबाड़ी प्रखंड स्वास्थ्य पदाधिकारी ने पुलिस गश्त की मांग की है। কালকে রাত্রিবেলা 10টা 10:30 নাগাদ 10টা 10-15 নাগাদ হবে, ওই একজন মদ্যপ অবস্থায় অ্যাক্সিডেন্ট করে আসছিল, তার সঙ্গে আরো 2-3 জন ছিল। ওরা আসার পর ফার্স্ট এড মেডিসিন হসপিটালে দেখায়, এমার্জেন্সিতে ফার্স্ট এড দেয়, ওখানে ইঞ্জেকশনও নেয়। ওই যখন ডাক্তার ছেড়ে দেন তখন রাস্তায় গিয়ে আবার মনে হচ্ছে যেহেতু ড্রিঙ্ক করা অবস্থায় ছিলেন হয়তো পড়ে গেছেন, আবার সেই নিয়ে ফিরে এসে ডাক্তারের সঙ্গে আবার ঝামেলা করেছেন ওরা। তখন ডাক্তারবাবু বাধ্য হয়ে একটা থানায় এফআইআর করেন, তারপর অ্যারেস্ট হয়। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। We focus on making students future ready with the needs of industry. By acquiring skills, make students competitive in their careers. With relevant skills, making students are more marketable. With collaboration, keep updated with industry trends.
During course, students are earning from their activities in the industry. Supplements to on-job learning on a regular schedule during course. Don't wait, secure your future now. Admission open. Medhavi Skills University, Singham, Bermioc. Contact us at 9874875876 or visit our website www.msu.edu.in. जता है र उता नहीं छचार 4 डिजिट मा अब प्रथम पुरस्कार नागालैंड स्टेट डियर 500 सुपर मंथली लॉटरी पहिलो पुरस्कार 2.5 करोड ग्यारेंटेड मात्र 4 डिजिट मा टिकट 500 रुपया ड्रॉ 14 सितंबर पहिलो पुरस्कार. Dreaming of visiting Mirik? Luxury meets serenity, a perfect blend in Mirik's Mount Queen. Joy has no end. Just a 1.5 hour drive from Siliguri. The perfect destination for relaxation or corporate events. Experience breathtaking views of Mirik Lake and the pine tree landscape from the hotel, featuring exquisite banquets and spacious luxury rooms. Mount Queen Hill Resort and Spa, your new destination for a luxurious retreat in Mirik. Call to book 8001337000. Can you believe this? क्या आप विश्वास करेंगे? दवाइयों में 22% तक की छूट। जी हाँ, सिलीगुड़ी फार्मेसी हर मेडिसिन में 22% छूट दे रहा है। साथ ही पूरे सिलीगुड़ी में फ्री होम डिलीवरी। सिलीगुड़ी के बाहर केवल 50 रुपए कोरियर चार्जेस। ऑर्डर करने के लिए फोन करें। अब मेडिसिन के खर्चे में बचत ही बचत। मंडे टू संडे सुबह 7 बजे से रात 12 बजे तक दुकान खुली है और यहाँ 99.9% मेडिसिन आपको मिलेगी। सिलीगुड़ी फार्मेसी में पॉलीक्लिनिक भी है जहाँ आपको सिलीगुड़ी के बेहतरीन डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। सिलीगुड़ी फार्मेसी, नेताजी मोड़, सुभाष पल्ली। कॉन्टैक्ट नंबर 9933990001। क्या आपको सुनने में थोड़ी तकलीफ हो रही है? हम जानते हैं कि सुनना कितना जरूरी है, तो चलिए श्रवणी हियरिंग एड में आपका स्वागत है, जहां हम सुनने की ताकत वापस लाएंगे। हमारी मॉडर्न लैब में हम आपके कानों की जांच करेंगे और सही सलाह देंगे। और अच्छी बात यह है कि अब श्रवणी हियरिंग एड सिलीगुड़ी में भी खुल गया है। तो आइए सही हियरिंग मशीन लगाइए, वो भी पूरी जांच परख के बाद। श्रवणी हियरिंग एड, सुनने की नई उम्मीद। हमारा पता द्वारिका रुक्मणी प्लाजा, पहली मंजिल, बाघा जतीन रोड, सिलीगुड़ी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सामने। फोन करें 9147375444. Why do 90% of Darjeeling visitors rave about Glenaries? Let's find out. Welcome to Glenaries in Darjeeling. Since the British Raj, this iconic bakery has been delighting generations with its exquisite confections. Imagine biting into a pastry that whispers tales of colonial elegance. From their famous pastries to artisanal breads, every bite is a taste of Darjeeling's rich heritage. Step inside and you're greeted with unmatched hospitality and timeless recipes. It's more than just food. It's a delightful experience wrapped in history. So, whether you're a travel enthusiast or a history buff, Glenaries is a must visit. Glenaries, where every moment is a taste of history. Visit us today and savor Darjeeling's oldest confectioners. Glenaries, taste the legacy. गणपति द्वारिका ग्यालेरिया अब सिलीगुडीमा झट्टै सञ्चालनमा आइरहेको छ। 140 वटा दोकानहरू भएको 7 तले शपिङ मल, जहाँ तपाईले सेपरेट सर्भिस एलिभेटर, सिटिङ, लन्जिङ एरियाज, हाइजेनिक टोयलेट्स र सेपरेट सर्भिस एरियाको सुविधा पाउनुहुनेछ। यसको साथै एस्ट्रोट्रफ फ्लोरिङ र टेरेसमा क्रिकेट नेट, आधुनिक सुविधाहरूले भरिएको लिफ्ट, एस्केलेटर, पार्किङ र सुरक्षा व्यवस्था पाउनुहुनेछ। झट्ट बुकिङ गर्नुहोस्। गणपति द्वारिका ग्यालेरिया, अपोजिट ग्लोबल टावर, बानेश्वर मोड़, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। बस ने स्कूटी चालक को पीछे से मारा धक्का, दंपति गंभीर रूप से घायल। सिलीगुड़ी के खोड़ीबाड़ी में एशियन हाईवे 2 पर एक बस ने स्कूटी चालक को पीछे से धक्का मार दिया। इस हादसे में स्कूटी पर सवार दंपति रॉबिन बर्मन और कल्याणी रॉय बर्मन गंभीर रूप से घायल हो गए। वे नक्सलबाड़ी जा रहे थे जब एक निजी यात्री बस ने उनकी स्कूटी से टक्कर मार दी। स्थानीय लोगों ने घायलों को नक्सलबाड़ी अस्पताल पहुंचाया। खोड़ीबाड़ी पुलिस ने दुर्घटनाग्रस्त बस को जब्त कर लिया और मामले की जांच शुरू कर दी है। স্কুটি আর বাইক বাসে কোন দিক থেকে আসতেছিল স্কুটি আর বাইক? ওই দুজনে পাইন থেকে আসছে, নকলবাড়ি থেকে যাচ্ছে। বাসে ওভারটেক করতে গিয়ে কেমন আছে স্কুটি চালক? স্কুটি চালক তো এখন ভালো নেই। কোথায় নিয়ে যাওয়া? নকলবাড়ি হাসপাতাল। আর বাসকে তো থানায় নিয়ে বাসকে থানায় নিয়ে গেল। কোন জায়গায় ঘটনাটা হয়েছে? এটা উত্তর রামগঞ্জ বর্ডার। কি নাম আপনার? ভগীরথ।
3 दिन बाद लापता युवक का शव मिला। पिछले शनिवार को खरसियांग खंड के दूधिया में पलासन नदी में नहाते समय एक युवक मोहित लामा डूब गया था। 3 दिनों की खोजबीन के बाद राफ्टिंग बोट की मदद से बागडोगरा के भुजियापानी निवासी मोहित का शव पलासन नदी से बरामद कर लिया गया। शव दूधिया के पलासन नदी से स्टील ब्रिज के पास मिला। नदी की गहराई और तेज बहाव के कारण बचाव कार्य में मुश्किलें आई। शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेजा गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हाम्रो चाहिँ के छ भने नि लोकलहरूको केटाहरूको भने चाहिँ यदि यो पञ्चायत पुलिस प्रशासन 1-2 जना आएर यो कन्ट्रोल हुन सक्दैन। यो जति पनि बर्खा मान्छे बगाउँछ यो घटना रोक्न सक्दैन। पुलिस प्रशासनहरूले यदि पञ्चायतहरूले मिलेर हामीलाई एउटा कार्ड जुन चाहिँ के भन्छ त्यसलाई आइडेन्टिटी कार्ड या के पनि कमिटी भोलिन्टियरहरू बनाइदियो भने है, भोलिन्टियर चाहिँ राख्यो भने हाम्रो गाउँको 4-5 जना केटाहरू छ त्यस्तोहरूलाई भोलिन्टियर कार्ड दिएर राख्यो भनेदेखि चाहिँ यो घटनाहरू चाहिँ रोक्न सकिन्छ क्या त। अब हामी अब केही आधारै छैन हाम्रोमा त्यो मान्छेलाई रोक्ने क्या त। पौडी खेलिरहेको हुन्छ, हामी गएर त्यता खोलातिर नजानु भन्दा हामी लोकल त हो के गर्नु सक्छ भन्ने यस्तो टाइपको कुरा हुन्छ क्या। बाहिरकोहरूले उल्टा मतलब धम्काउँछ पनि होइन, मतलब यदि हाम्रोमा आधार छ भनेदेखि चाहिँ हामी निकाल्न सक्छौँ नि त, यिनीहरूलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। अगर त्यस्तो व्यवस्था थियो भने ऊ पनि बाँच्न सक्थ्यो सक्थ्यो। त्यो आधारै नभएपछि हाम्रो अब भन्ने अधिकारै हुँदैन क्या। उल्टा हामीलाई थर्काइदिरहेको हुन्छ बाहिरको मान्छेले। यदि हामीलाई यसरी अब एउटा के बागडोगरा में सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति की मौत। बागडोगरा थाने क्षेत्र में सड़क दुर्घटना में संजीव ओराव नामक युवक की मौत हो गई। संजीव पुतिमारी का निवासी था और काम का वेतन लेकर बाइक से घर लौट रहा था। एक महिला को टक्कर मारते समय वह सीमेंट के खंभे से टकरा गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने अनुसार संजीव नशे में था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए उत्तर बंगाल मेडिकल कॉलेज व अस्पताल भेज दिया। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। উনি তো ইয়ে লেবারি কাজ করে, তো ড্রাইভার করতো, তো আজকে এমনি হাফতা এমনি মঙ্গলবার করতো পেমেন্ট পায়, তো পয়সা উঠাইতে গেছিলো। পয়সা উঠায় আসার সময় যে তারপর ওইদিকে হয়তো একটু মর্তক খেয়েছে। এবার আসার সময় আবার ওইদিকে আরেক জায়গায় অ্যাক্সিডেন্ট করে, মানে তারপর উনি ওই ভয়েতে প্রায় স্পিডে দিয়েছে গাড়ি। ওই ভয়ের জন্য এবার চলে আসে এদিকে, এখানটা আসে পোল কোয়েটের মধ্যে লাগিয়েছে। হ্যাঁ, মানে একটা বউ বাচ্চা ছিল কোলের মধ্যে, তো ওনার ইয়ে পিছনের মধ্যে লাগাই দিয়ে প্রায় ইয়েতে স্পিডে ভাঙে গেছে। তো ওনার ওই বউটারও আবার ইয়ে কোমর ভাঙে গেছে। এখানটা এসে ধাক্কা মার দিয়ে বাস মারা গেল। एनजेपी पुलिस को मिली बड़ी सफलता। चोरी की 10 साइकिलें व एक टोटो के साथ 3 चोर गिरफ्तार। अंबिका नगर से साइकिल चोरी की शिकायत के बाद पुलिस ने सादे लिबास में जांच शुरू की। आरोपी विभास दत्ता को एनजेपी रेल अस्पताल मोड़ से गिरफ्तार किया गया, जिससे पूछताछ के बाद 10 साइकिलें सिलीगुड़ी टिकियापाड़ा से बरामद की गई। इसके अलावा सिलीगुड़ी के गेट बाजार से चोरी हुए टोटो को सौरभ दे और सुकुमार दास के पास से बरामद किया गया। पुलिस ने सभी आरोपों को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास सड़क दुर्घटना मामले में एक गिरफ्तार। सिलीगुड़ी के ईस्टर्न बाईपास पर हुई सड़क दुर्घटना में मारे गए युवक के परिवार की शिकायत के बाद भक्तिनगर थाने की पुलिस ने गौतम विश्वास को गिरफ्तार कर लिया। मालूम हो कि रविवार की शाम एक बाइक पर 3 दोस्त घूम रहे थे, जब ट्रक को ओवरटेक करते समय पीछे बैठे कृष्णादास गिर गया और उसकी मौत हो गई। हादसे के बाद दोस्त बाइक लेकर फरार हो गए। पुलिस ने गाजलडोबा से गौतम विश्वास को गिरफ्तार किया, जबकि दूसरे दोस्त और बाइक की तलाश जारी है। गिरफ्तार आरोपी को जलपाईगुड़ी अदालत में पेश किया गया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव पे। धन्यवाद। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा, केवल 6 रुपयामा 1 करोड, 6 रुपयामा 1 करोड। के 1 करोड केवल 6 रुपयामा? किन्नुहोस् डेयर साप्ताहिक लटरी केवल 6 रुपैयाँमा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड रुपैयाँ। 6 रुपयामा 1 करोड, 1 करोड 6 रुपयामा 6 रुपैयाँ। डेयर साप्ताहिक लटरी, भाग्य बदलिने बाटो।